Dear viewers and dear students, now check. Today I will teach you basic grammar. What is grammar? Grammar simple definition is the rules used for writing a language. So it is what? It is just a set of rules. A set of rules for what? For writing a language. Are the rules used for writing a language is called grammar. यानी क़वानीन का उसूलों का एक ऐसा मजमुआ जो एक ज़बान लिखने के लिए इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है. Okay? In today's topic I will teach you basic grammar. In basic grammar, dear viewers, dear students, our first is what? Alphabet. Let's start with alphabet. What did I write? Alphabet. Alphabet. Alphabet means a set of letters, e.g. in English A, B, C, D, E, dash, dash, Z. So that set of letters is called what? Alphabet. What is alphabet? A set of letters. Now check. It is a set of letters. A set of letters used for writing a language is called what? Alphabet. Like in English language, we are having how many letters? 26 letters. A, B, C, dash, dash, Z. Did you understand or not? Yes, sir. Now, in these 26 letters, as total these letters are how many letters? 26 letters. In these 26 letters, 5 letters are what? Vowels. What is our coming topic? Our coming topic is about what, dear students? Vowels. Vowels. How can we define vowel? So, the letters pronounced without ear stoppage through the mouth is called a vowel, or if 5 then are called vowels. यानी ये वो हुरूफ होते हैं जिनको हम जब अदा करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा खारिज होती है वो हवा रुकती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है? डायरेक्ट खारिज हो जाती है. यानी कोई चीज रुकावट पेशा नहीं करती हवा निकलने में. मिसाल के तौर पर ना दांत हवा को रोकते हैं, ना जबान हवा को रोकती है और ना होंठ हवा को रोकते हैं. यानी मुंह से डायरेक्ट ही हवा निकल जाती है और कोई चीज रुकावट पेश नहीं करती. तो ऐसे लेटर्स, ये ऐसे लेटर्स टोटल कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 5. A, E, I, O and U. Okay dear students? Yes, sir. How can you define? Letters pronounced without ear stoppage through the mouth are called vowels, and these 5 are what? Vowels. Okay dear students? Yes. Now the coming topic is about what? Consonant. That is number third. Number third is what? Consonant. Now check consonants, because not one, many, so I wrote plural. You can write the definition of singular as well, one letter definition, or you can write all letters definition as well. Okay? So consonant are what? The remaining letters except W and Y. All the remaining letters are what? Consonant, other than A, E, I, O, U. When we subtract 5 letters from 26, total letters 21. 21 are consonants, but 2 are basically there are 19 consonants. How many are consonants? 19. 2 letters are sometimes consonants and sometimes they are vowels, and they are W and Y. Now check a little consonants definition. Letters pronounced with the stoppage of air through the mouth are called consonants. ये वो लेटर्स होते हैं जिनको हम जब अदा करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा खारिज होती है वो क्या होती है? रुकती है, उनमें रुकावट पेश आती है.
बाज़ औक़ात दांत इसको रोकते हैं, बाज़ औक़ात खून इसको रोकते हैं, बाज़ औक़ात ज़बान इसको रोकती है। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, सो इनमें से जो लेटर्स है वो क्या है रिमेनिंग? B है, C है, D है, F है, G है। समझ गए आप लोग? यानी इनके अलावा और W और Y के अलावा टोटल कितने लेटर्स जो है वो 19 लेटर्स जो है वो है डियर स्टूडेंट्स क्या? कॉन्सोनेंट्स। इनको अदा करते वक्त मुंह से जो हवा खारिज होती है वो क्या होती है? रुकती है। समझ गए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? नो सर। Dear students, now the coming two letters which are remaining, they are called semi-vowel or semi-consonant. Check. Let I will write W and Y are they are called what? Semi-vowel or sometimes semi-consonant. Semi-vowel or semi-consonant. सेमी वोवल और सेमी कॉन्सोनेंट्स, कब ये सेमी वोवल होंगे, कब ये सेमी कॉन्सोनेंट होंगे, ये बात काफी अहम है। अब गौर कर लो, ये दो लेटर्स जो क्या है W और Y, ये बाज़ औक़ात वोवल होते हैं और बाज़ औक़ात ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो गौर कर लो, ये कब वोवल होते हैं? ये तब वोवल होते हैं जब ये लफ्ज के आखिर में आते हैं। लफ्ज के आखिर यानी सिलेबल के जब आखिर में आते हैं तो ये क्या होते हैं? वोवल। अगर सिलेबल के सिरे में आते हैं तो ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब चेक करो, ये आखिर में कब आते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने एक लफ्ज लिख लिया क्या? रॉ। W किधर है? आखिर में। या मैं एक लफ्ज और लिख लूं, ये मैंने लिख लिया क्या? काउ। काउ मीन गाय। तो ये W किधर आ गया? आखिर में। तो ये आखिर में, सिलेबल के आखिर में है, लिहाजा ये क्या है? वोवल। समझ गए आप लोग? अगर ये इसी तरह ये Y, मिसाल के तौर पर मैंने लिख लिया क्या? स्काई। मैंने लिख लिया ड्राई। और इस तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके यानी सिलेबल के आखिर में Y आ गया। जब ये आखिर में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? सेमी वोवल। और जब सिरे में आ जाते हैं तो तब ये क्या होते हैं? सेमी कॉन्सोनेंट। समझ गए कि नहीं? हाँ, मिसाल के तौर पर अब अगर मैं लिख लूं क्या इसको, देखिए मैंने क्या बना दिया? वॉर। तो W किधर आ गया? सिरे में। लिहाजा ये क्या है? सेमी कॉन्सोनेंट। और इसी तरह अगर मैं लिख लूं क्या? वॉस, तो W किधर है? सिरे में। जब सिरे में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और इसी तरह मिसाल के तौर पर U, ये Y किधर है? सिरे में। लिहाजा क्या है? कॉन्सोनेंट। और इसी तरह अगर मैं लिख लूं मिसाल के तौर पर बहुत सारे हैं, मैं लिख लूं यंग, तो Y किधर है? सिरे में। यानी जब Y W सिरे में आ जाए तो ये तब क्या होते हैं? सेमी कॉन्सोनेंट। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाते हैं। I am proud of you. Now, dear students, we will move a little forward. The coming definition, that is about what? Fourth definition, that is about what? Letter. Do you see? Letter. Letter is any written or printed symbol. एक सिंबल अगर हम लिख लें या एक सिंबल अगर हम क्या करें? टाइप कर दे, प्रिंट कर दे, तो प्रिंटेड सिंबल हो या रिटन सिंबल हो उसको क्या कहा जाता है? लेटर। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या लिख लिया? ए, तो ये लेटर है। समझ गए कि नहीं? या चलो मैं थोड़ा सा है, ये मैंने क्या लिख लिया? सी, ये क्या है? लेटर। ये क्या है? ए, लेटर। और ये क्या है? टी, लेटर। ये सारे के सारे क्या है? लेटर। तो ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, और ये मैंने क्या कर दिया? लिख लिया। तो ये रिटन सिंबल को क्या कहा जाता है? लेटर। और उर्दू में इसको हम हर्फ बोलते हैं। ये जितनी भी 26 है ये सारे क्या है? हरूफ है। और अल्फाबेट का मतलब क्या है? हरूफे तहजीब। समझ गए कि नहीं? आप डियर स्टूडेंट करो, ये सिलेबल। सिलेबल कैसे बनता है? सिलेबल बनता है जब एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल आपस में मिलते हैं, यकजा हम करते हैं तो उसे आवाज बन जाती है। उस आवाज को कहते हैं क्या? सिलेबल। यानी बाज वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक सिलेबल होता है,
बाज में 2 होते हैं, बाज में 3 होते हैं। समझ गए कि नहीं? चलो मैं एक सिंपल सा छोटा सा, ये मैंने ऊपर जो लिखा है ये क्या है? अगर हम इसको देखें ना, एक आवाज बना ले इन 3 लेटर से, तो आवाज क्या बन जाएगा? कैट। क्या बन जाएगा? क्या बन गया? कैट। समझ गए आप लोग? हाँ, तो ये कैट जो है ये एक ऐसा सिलेबल है जिनमें 1 सिलेबल है। इसमें कितने सिलेबल है? 1। इस पूरे वर्ड में हमारे पास कितने सिलेबल है? 1। लेकिन अगर मैं एप्पल लिख लूं, चेक, ये मैंने लिख लिया एप, ये एक पी से ए बी क्या है? वोवल है, और पी जो है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। हाँ, तो इनसे क्या बन गया? एप। तो ये एक सिलेबल है। और दूसरा सिलेबल मिसाल के तौर पर मैंने दूसरा बना लिया पल, PLE। अब चलो इधर लिख लूंगा आप लोगों के लिए। अब देखो ये एप और दूसरा क्या? पल। ये 2 सिलेबल है इस एप्पल वर्ड में। कितने सिलेबल है? 2। एक है AP और दूसरा है PLE। ऐसी भी आवाज बन गया एप और ऐसी भी आवाज बन गया पल। तो एप्पल क्या हमारे पास बन गया? वर्ड। तो ये क्या बन गया? वर्ड। और इसमें सिलेबल कितने हैं? 2 सिलेबल। देयर आर हाउ मेनी सिलेबल? 2 सिलेबल। निहाल की गौर से सुन ले। अब ये लेटर्स थे डियर स्टूडेंट्स जो मैंने पहले लिखे थे, ये CAT। अब इसे नेक्स्ट जो हमारे पास है 6 नंबर पे, वो क्या बन जाएगा इनसे? वर्ड। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? हाँ, तो नेक्स्ट नंबर 6 पे क्या है डियर स्टूडेंट्स? वर्ड। हाँ, तो इनको हम कंबाइन करके ये CAT, तो इसे एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? कैट। तो वर्ड की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? A group of letters that gives a complete sense। अब देखो हरूफ को हमने इकट्ठा कर दिया और इसे ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप हमें मतलब देता है। कैट किसे कहा जाता है? बिल्ली को। पश्तो में क्या बोलते हो? मुकम्मल मतलब रोक लो। So it means this is what a word। Easy। अब वर्ड के आगे डियर स्टूडेंट्स क्या है? फ्रेज। फ्रेज का डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, a group of words that gives some sense but not a complete sense। ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख लूं, लेट्स सपोज इधर मैंने एक अल्फाज का मजमूआ मैंने लिख लिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया इन द क्लास रूम। ओके, सो अब ये 3 वर्ड्स का मजमूआ है, ग्रुप है, लेकिन ये थोड़ा मतलब देता है, मुकम्मल मतलब नहीं देता। मानिए मैंने लिख लिया इन द क्लासरूम। क्या मतलब है इसका? क्लासरूम में। लेकिन पूरी तरह से आप लोग समझ नहीं पा गए कि मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं मोहम्मद के बारे में कह रहा हूं, मैं कुमेल के बारे में, या किसके बारे में कह रहा हूं। आप लोग पूरी तरह से समझ नहीं गए। यानी अल्फाज का वो मजमुआ जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ मतलब हासिल हो जाए, लेकिन पूरा मतलब आप लोग हासिल ना कर सके, ऐसे अल्फाज को के मजमूए को क्या कहा जाता है? फ्रेज। समझ गए कि नहीं? yes, आगे का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स क्लास। क्लास की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि a group of words having subject and a verb that has a complete sense is called a class। एक मिसाल के तौर पर ये मैंने क्या लिख लिया? ही हम किसी मर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुज़क्कर के लिए, पता है ना आप लोगों को? अगर मैं इधर मैं अपने बारे में लिख लूं ही teaches, समझ गए आप लोग? बाहर एक स्टूडेंट से कोई आके मेरे बारे में पूछ ले व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है क्लास में, तो वो क्या कहेगा? ही teaches। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट, और टीचर्स क्या है? तो ये हमारे पास क्या है? क्लास। समझ गए कि नहीं? yes, यानी a group of words having subject and a verb that has a complete sense is called a class। समझ गए कि नहीं? yes, कोई प्रॉब्लम? no, अब लास्ट वाला क्या है? सेंटेंस। अब 9 वाला सेंटेंस वाला चेक करें डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने लिख लिया क्या डियर स्टूडेंट्स? सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन a group of words that gives a complete sense is called a sentence। अब देखो मिसाल के तौर पर he teaches क्या? English। इसके साथ मैंने सिर्फ क्या किस चीज का इजाफा किया? इंग्लिश का।
तो ये 3 वर्ड्स का मजमुआ है और ये पूरा मतलब दे सकता है। पूरा मतलब दे सकता है कि नहीं? A group of words that gives a complete sense is called what? A sentence. Sentence mean जुमला, यानी अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें पूरा मतलब दे, ऐसे अल्फाज के मजमुए को हम कहते हैं कि a sentence. Okay, dear students? Yes, sir. Any problem? No, sir. Easy है? Yes, sir. So, dear students, किसी ने YouTube चैनल के बारे में पूछा। So, मेरे YouTube चैनल का नाम है, आप लोग इसको आज ही चेक कर सकते हैं। ये इस तरह आप लोग देंगे, ये IE Innovative English Language Center _ Para Chennai। इस तरह आप लोग YouTube पर दे तो ये चैनल आ जाएगा। इस YouTube चैनल पे बहुत सारे इंशाल्लाह कई वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। यानी वो स्टूडेंट जो इधर आ नहीं सकते या कुछ मसला है मिसाल के तौर पर, तो YouTube से भी वो सीख सकते हैं। डोंट वरी। सो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं कि मैं और किस किस्म के वीडियोस बना लूं, तो आप लोग इस पर चेक कर सकते हैं और पेज पर भी चेक कर सकते हैं। पेजेस 2 है, एक है इनोवेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीट स्पेलिंग देनी होगी। पेजेस जो है ये है इनोवेटिव इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर पारा चेन्नई, ये पेज है फेसबुक पर। एक और दूसरा भी एक है लेट्स स्पीक इंग्लिश, ये दूसरा पेज है फिर, ये लेट्स स्पीक इंग्लिश। सो ये 2 पेजेस हैं और इन 2 पेजेस पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। Thank you, friends. Wish you all the best and see you next time. Goodbye.